Hello my dear lovely students, welcome back to your classes. Okay, my dear students, you remember in the previous video we have started a lesson, and what was the name of the lesson? The name of the lesson was human body. What was the name of the lesson? The name of the lesson was human body. So in today's video we are going to continue the rest of the lesson. See, in the previous video we have completed half lesson of human body. See, till sense organs we have completed, but in today's video we are going to complete the rest of the lesson. आज के वीडियो में हम आपका बचा हुआ लेसन पूरा एक्सप्लेन कर देंगे. So are you ready? So without wasting much of our time, come we will start our today's lesson, human body. Okay? Okay, my dear students, in the previous video we have completed till ear, sense organs, and which sense organs we have discussed. First was eyes. Now we will see more about eyes. Our eyes help us to see things. Pictures of the things seen by us are inside our eyes. A nerve carries the message about this to the brain. The brain helps us to know what they are. Means eyes are watching pictures, okay, and eyes are giving message to brain. What message? That you have to see this picture, you have to see that side, you have to see this side, okay. Eyes क्या करती है? अपने ब्रेन को मैसेज देती है. क्या मैसेज? कि हमें इधर देखना है, हमें उधर देखना है, हमें ऊपर देखना है, नीचे देखना है, किधर देखना है, ओके. Now we will see a page number 159. Now we will see ears. Our ears help us to hear sound. Messages about the different kinds of sound reach the brain through the ears and the nerves connecting them to the brain. Means ears help us to hear. Means हमारे जो ears है वो हमें कैसे हेल्प करते हैं? सुनने के लिए कि किस तरीके की आवाज़ आ रही है. अगर कहीं भूत की आवाज़ आई तो हम कहाँ से सुनेंगे? अपने नोज से. नो, वी विल हियर बाय आवर ईयर्स. सो ईयर्स हेल्प अस टू नो द काइंड्स ऑफ साउंड. की डरावनी आवाज़ है, कि किसी की शादी हो रही है, बारात की आवाज़ है, या किसी की टीवी की आवाज़ है, ओके. डिफरेंट थिंग्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्मेल. आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल डिफरेंट थिंग्स. नाउ वेयर नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज nose. Nose help us to smell the things, okay. You can smell the rose by nose, and if around you some bad smell is coming, so how you will know? By your ears, by your tongue? No, you will know by your nose. The message about the taste reaches the brain through the nerves connecting the tongue. The brain tells us about taste of that thing. Now after nose, which sense organ comes? Tongue. How do tongue help us? हमें tongue कैसे help करती है? Tongue help us to know the taste, whether the thing is so sweet, sour, bitter और सॉल्टी. टंग हमें हेल्प करती है टेस्ट पहचानने में कि जो चीज़ हम खा रहे हैं वो मीठी है, खट्टी है, नमकीन है, स्वीट है, या ठंडी है, या गर्म है. कौन बताता है? टंग. नाउ स्किन. आवर स्किन हेल्प अस टू फील हीट एंड कोल्ड. Messages are carried through the nerves from the skin at the tips of our fingers to the brain. Now what is the function of skin? अब skin की क्या function हो सकती है? Skin help us to know that weather is cold or hot. Skin से हमें पता चलता है कि मौसम आज का कैसा है, गर्मी लग रही है या ठंडी है, ओके. The brain also tells us about the surface. So we are able to say if a surface is rough or smooth.
द स्किन ऑल्सो हेल्प अस टू फील प्रेशर एंड पेन। मतलब स्किन हमें हेल्प करती है ये जानने में जो सरफेस मीन्स जो चीज़ जो कपड़े हम लोग पहन रहे हैं वो रफ़ है या स्मूथ है, हमें कैसे पता चलता है? हमारी स्किन से। एंड वी कैन फील द प्रेशर एंड पेन। प्रेशर एंड पेन मीन्स प्रेशर का मतलब है हमारे ऊपर जो दबाव, किसी ने अगर 50 किलो का सामान अपने ऊपर फेंक दिया तो कैसे लगेगा? प्रेशर, जैसे कि कितना प्रेशर है अपने ऊपर। एंड पेन मीन्स इफ़ यू हैव गेट हर्ट मीन्स अगर आपको चोट लगी हो तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको चोट लगी तो आपको पेन होगा, तो थ्रू पेन यू कैन फील। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डाइजेशन। We need food. The food we eat is in a complex form. The body cannot use it till it is broken down into simple forms. Now food मतलब खाना। खाना हमें कैसे हेल्प करता है? खाने को आप ऐसे बिना च्यू करे निगल जाओगे तो वो अंदर जाएगा? नो। खाने को अपने को मुंह में अच्छे से च्यू करना यानी कि चबाना पड़ता है, तब जाके वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। द ऑर्गन्स फॉर्मिंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपल फॉर्म। दे कैन इजीली बी यूज्ड बाय बॉडी। मीन्स हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है मतलब पाचन क्रिया, वो क्या करती है? अगर हमने खाने को अच्छे से च्यू यानी कि चबाए नहीं तो वो पाचन क्रिया उसको बहुत अच्छी से एकदम छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करती है और उसको एकदम सिंपल फॉर्म में आगे कैरी फॉरवर्ड करती है, ताकि उसके जो भी एनर्जी प्रोटीन्स है अपने पूरी बॉडी में चले जाए। द टीथ इन द माउथ कट द फूड इनटू स्मॉल बाइट्स एंड च्यू इट। हमारे दांत क्या काम करते हैं? खाना को च्यू करने के मीन्स चबाने में। फूड इज़ मेड इनटू पेस्ट मीन्स हम जो खाना खाते हैं उसको दांतों से चबाते हैं, ठीक है, च्यू करते हैं, फिर उसका पेस्ट बन जाता है और फिर हम उसको स्वॉलो यानी कि निगल पाते हैं। देन इट पासेस थ्रू द डाइजेस्टिव ऑर्गन। देयर आर डाइजेस्टिव जूसेस इन द सिस्टम। दिस जूसेस चेंज द फूड इनटू सॉल्युबल फॉर्म। मीन्स हम जो खाना चबा के अपने डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन क्रिया में अंदर करते हैं तो उस पाचन क्रिया में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं जो अपने खाने को सॉल्युबल फॉर्म मतलब सॉलो करने में हेल्प करता है। दिस इज़ डाइजेशन मीन्स हमारा जो सॉल्युबल फॉर्म है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मतलब पाचन करने में हेल्प करता है। डाइजेस्टेड फूड रीचेस इनटू द ब्लड मीन्स हम जो खाना खाते हैं वो हमारे खून में यानी कि ब्लड में पहुंच जाता है। द ब्लड कैरीज इट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब खून के ज़रिए हमारा खाना हमारे बॉडी में अलग अलग जगहों में पहुंच जाता है, अलग अलग पार्ट्स में पहुंच जाता है। सम ऑफ द फूड में रिमेन अनडाइजेस्टिव। दिस इज़ अ वेस्ट मटेरियल। दिस वेस्ट इज़ थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द रेक्टम एंड एनस। जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, अनडाइजेस्टेड रहता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है और अपने बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स की जगह रहती है, वहाँ जाके वो जमा हो जाता है और बाद में जब वो पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो वो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू द रेक्टम एंड एनस। Now my dear students, we will turn the page. Now we will see breathing and correct breathing habits. Breathing means सांस लेना and correct breathing habit means हम अच्छी तरीके से सांस लेना चाहिए हमें। हम कोई गलत तरीके से सांस लेते हैं तो अच्छे तरीके से सांस लेना किसको बोलेंगे? Come we will see. We need energy to work and play. The food we eat is burned in the body. Now we need energy. And why we need energy? To do work and for playing. The food we eat is burned in the body. मतलब जो खाना हम खाते हैं वो बॉडी में बर्न यानी कि
यूज हो जाता है। We get energy from the food. Oxygen is useful to burn the food. The breathing system helps the body to get oxygen. Now oxygen is useful to burn the food. Means फूड को ये करने के लिए, यूज़ करने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा कामगार है अपने बॉडी में। ओके, वी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एयर, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मीन्स सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, ये प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। वी ब्रीथ इन एयर थ्रू द नोज, देयर आर हेयर इनसाइड द नोज, द हेयर स्टॉप द डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स। मीन्स हमारे नोज में अगर आप देखोगे ध्यान से, छोटे छोटे हेयर्स यानी कि बाल होते हैं। अब ये बाल हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं? दे हेयर हेल्प अस फ्रॉम द डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स। मतलब हम जो सांस लेते हैं, वो जो बाल रहता है नोज में, उसमें पूरे डस्ट पार्टिकल और जर्म्स जो हम अंदर लेते हैं वो सब अटक जाते हैं। ठीक है। द एयर विच passes through the nose becomes as warm as the body. It is also made sufficient moisture. This air is now pure. There will be plenty of oxygen in it. मीन्स हम जो सांस लेते हैं उसमें कोई जर्म्स, कीटाणु अगर कुछ है तो हमारे नोज़ के हेयर में, मीन्स नोज़ के बाल में वो अटक जाते हैं और सॉलिड हो जाते हैं, मतलब कड़क हो जाता है, और हम बाद में जो अंदर लेते हैं वो फ्रेश एयर रहती है। दिस प्योर एंड फ्रेश एयर रीच द लंग्स थ्रू द विंड पाइप्स। देयर आर मैनी एयर स्कैन्स इन द लंग्स द फिल्स द सैक्स। मीन्स हमारे जो लंग्स यानी कि फेफड़े हैं, वो इस नाक से जो प्योर फ्रेश एयर हम लोग लेते हैं तो वो एयर हमारे लंग्स तक पहुंचती है। और लंग्स तक कैसे पहुंचती है? थ्रू विंड पाइप्स। मतलब हमारे बॉडी में विंड पाइप्स रहते हैं जिसके थ्रू एयर नाक से हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों में पहुंच जाती है। और नाक में जो बाल रहते हैं उसमें वो डस्ट और जर्म अटक जाते हैं तो हमारे अंदर फ्रेश एयर आ जाती है। देयर आर मैनी वेरी वेरी स्मॉल ब्लड वेसल्स ऑन द walls of this sacs. Oxygen gets into the blood from air. The blood is now bright, has plenty of oxygen. It carry oxygen to the different parts of the body. Means there are some very small blood vessels. मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे ब्लड वेसल्स है। जैसे कि घर में बर्तन रहते हैं ना, उसको वेसल्स बोलते हैं, वैसे हमारी बॉडी में भी बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं और सैक्स बने हुए ब्लड वेसल्स के। और ये ब्लड वेसल्स क्या काम करते हैं? ये ब्लड वेसल्स हमारे ब्लड में जो एयर, जो ऑक्सीजन रहती है ना, वो पूरे बॉडी में सप्लाई करती है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो दिस ऑक्सीजन इज़ यूज टू बर्न द फूड। और जो ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होता है वो हमारा खाना बर्न करने में हेल्प करता है। वी ब्रीथ आउट इम्प्योर एयर containing carbon dioxide. Thus, this waste matter is thrown out of the body. The impure air breathed out air has germs and water vapor also. Means हम जो सांस बाहर छोड़ते हैं, अंदर लेने का नहीं, जो बाहर छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं उसको। जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। ओके, वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आवर बॉडी। ओके, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ जर्म्स एंड वाटर वेपर्स। मीन्स जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं उसमें जर्म्स यानी कि कीटाणु और वाटर वेपर्स यानी कि धुआं ऐसे प्रकार रहते हैं। करेक्ट ब्रीदिंग हैबिट्स मतलब सही तरीके से सांस लेने के तरीके। फर्स्ट, ऑलवेज ब्रीथ थ्रू योर नोज। मीन्स हमेशा नोज से ही सांस लेना है। कोई कोई लोगों को आप देखे होंगे जो मुंह से सांस लेते हैं, वो रॉन्ग है।
नोज से सांस लेना है। टेक फिजिकल एक्सरसाइज इन द ओपन एयर मीन्स हमें रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए खुली हवा में। कीप द विंडोज़ ऑफ योर रूम ओपन व्हेन यू स्लीप मीन्स हम जब सोते हैं तो हमारे अपनी रूम की जो विंडोज़ रहती है उसे खोल देना चाहिए। ठीक है। नेवर कवर योर फेस वाइल स्लीपिंग मीन्स सोते समय हमें अपना फेस यानी कि मुंह कभी भी ढकना नहीं चाहिए। डू नॉट वेयर टाइट फिटिंग क्लोथ्स मतलब रात के टाइम सोते समय एकदम टाइट फिट क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। डू नॉट वेयर टाइट फिटिंग क्लोथ्स ओके। ऑलवेज वर्क इन द एरी सराउंडिंग्स मतलब हमेशा हवादार एरिया में जिससे हवा आ जा सके वहाँ पर ही वर्क करिएगा। Okay, my dear students, here we have end our today's chapter. So my dear students, here we have completed our today's lesson. Okay, and what you have learned in today's lesson? We have learned that we have 5 sensory organs and we have to breathe in a right and proper order. We should breathe through our nose, not from our mouth. Okay. I hope you all have understood the lesson. If you have any doubt related to the lesson, you please ask me. Okay? And notes. I will send you the notes in the form of PDF. So complete your notes and I want good handwriting. See my dear students, in the copy you will write only question and answer. Copy में आप सिर्फ question और answer लिखोगे because the rest of the question are already in the बुक क्योंकि बाकी के क्वेश्चंस बुक में रहते हैं तो आप कॉपी में सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स लिखोगे। ओके, सो इट्स द टाइम टू टेक लीव। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी, डोंट डिस्टर्ब योर पेरेंट्स, डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स, बी हैप्पी। आई विल सी यू, बाय बाय।